Assalamu alaikum everyone. Today's online masterclass is on insurance sales strategy presented by Ms. Madiha Ahmed. She is an insurance sales strategist, brand and growth leader. Currently, she is working as Deputy General Manager in IGI General Insurance. She has more than 19 years of expertise in insurance industry. Over to you, Ms. Madiha. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thank you for the introduction. I'm Madiha Ahmed, and I'm working with IGI General Insurance from past 19 years. A little introduction about myself. I joined right after my bachelor's. My internship got completed, and then I joined insurance as a career. Honestly, it was not something which I thought of that I'll spend like 19 years in this industries, but touch wood, mashallah, mashallah, alhamdulillah, it's going very well so far. And I'm going to guide you today that how one can build a career in insurance sales. I joined after my BBA with marketing majors and IT majors. And during my job and during my career, I completed my master's in finance, my MBA, and then I did insurance ACI certifications and a lot many courses apart from these also. They were in marketing and management. Uske saath, I have brand marketing experience as well. I have worked for two companies of IGI General Insurance and IGI Life Insurance. Or life insurance के अंदर I worked with Vitality South Africa. Vitality is by Discovery Africa, and IGI Life had a merger, still has a merger with them. And IGI Life has the sole rights of selling Vitality in Pakistan. So I was the head of brand marketing for both the brands, IGI General Insurance and IGI Life Insurance in Pakistan. So today we'll start with insurance sales strategy. आई बिलीव आप सब लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया है तो मे बी आप लोगों का इंटरेस्ट होगा इन सेल्स और यू आर ऑलरेडी इन सेल्स and you want to build a career around it. So I'm going to guide, a little bit about it. Obviously, this is an ongoing thing, and every day is a new day. Every day you learn new things. Every day you learn new things through your own experiences and from your colleagues' experiences. So, it's a continuous learning process. But however, today we'll understand the insurance sales, consultative selling approach, generation channels जो होते हैं, उसके बाद how should we develop a sales funnel, objection handling, the power of follow up, personal branding for sales success, KPIs. Every starter should track, and obviously afterwards we are going to have a QA session. So, insurance is all about, the real job is not about pushing the policies. It's solving the risk problems. आपने किसी के ऑफिस में जाके अगर तो रटा रटाया स्क्रिप्ट बोल देना है, तो उस तरह के बहुत से लोगों के पास, क्लाइंट्स के पास आके जा रहे होते हैं, एंड दे डोंट बॉदर अबाउट देम. The main thing is that you have to understand that client का business क्या है. What does he do, उसका क्या business है. Is he a 3S dealerships, is he a pharmaceutical company, is he a engineering firm, is that company a manufacturing concern. तो आपने पहली तो चीज, when you are in insurance you have to learn in your office, थोड़ा सा टाइम लगाएं एंड थोड़ा सा read about the products. कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जनरल इंश्योरेंस में. जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंसेस हैं, मोटर इंश्योरेंस है, मिसलिनियस के अंदर ऑल रिस्क इंश्योरेंसेस आ जाती हैं. तो जितनी क्लास ऑफ इंश्योरेंसेस हैं, you have to understand that what sort of insurances are available in market and what sort of insurances are applied to certain kind of industries. कुछ बेसिक होती है, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस है, वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस सबकी एक जैसी होगी. बट कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अंदर किसी का फ्लीट होगा, किसी का कमर्शियल फ्लीट होगा, किसी का प्राइवेट फ्लीट होगा.
कोई फार्मास्यूटिकल का फ्लीट होगा तो उसके क्लेम रेशोज डिफरेंट होंगे. सो माय सजेशन इज दैट फर्स्ट यू ऑल नीड टू काइंड ऑफ स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज, क्योंकि हम करते ये हैं कि हम फौरन ही मार्केट में चले जाते हैं, हमारे पर बजट्स के प्रेशर्स होते हैं, हमने सेल्स कर कर आनी होती है. और प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब क्लाइंट हमसे कोई सवाल करता है और हमारे पास उसका जवाब नहीं होता. सो बेसिकली आप वहां पे पॉलिसी बेचने नहीं जा रहे, यू आर गोइंग ओवर देयर टू सॉल्व अ रिस्क प्रॉब्लम. एक इंसान है, उसका कोई एसेट है, या इवन वो लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसका एक रिस्क है जिस रिस्क को आप कवर करने जा रहे हैं. सो एवरी क्लाइंट वॉक्स इन विद अनसर्टेनिटीज, एक्सपोजर एंड व्हाट इफ सिनेरियोज. हर एक का व्हाट इफ डिफरेंट होगा, मेरा व्हाट इफ डिफरेंट होगा, आप लोग जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है इनका व्हाट इफ डिफरेंट होगा. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर व्हाट इफ आंसर्स, कि ये हो गया मेरे साथ तो कौन जिम्मेदार होगा, या ये हो गया मेरे साथ तो मैं क्या करूंगा. उसके आंसर्स जितने आपके पास हो वो आपके पास होने चाहिए, और उसी से क्लाइंट सेटिस्फाई होता है. When you approach the conversation this way, I think you stop feeling like a salesperson and start like acting like a sales strategist. ठीक है, आपने वहां जाना है, जब भी किसी क्लाइंट से मिलेंगे, अगर तो वो आपका पुराना क्लाइंट अब हो गया हुआ है, आप उसको रिटेन कर रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे सर आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग यू एज अ इंश्योरेंस सेल्स प्रोफेशनल, मैं आपका एक इंश्योरेंस पार्टनर हूँ, मैं आपका एक रिस्क पार्टनर हूँ. मेरा काम ये है कि आप लोगों ने अगर इंश्योरेंस कराई भी है तो कल को अगर क्लेम आता है तो आपको उसके नाम पे टेंशन ना हो. आपका कोर बिजनेस जो है, वो चाहे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, एक पेपर मिल है, या एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी है, आपका कोर फोकस शुड बी मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट जो आपकी है. बाकी जो इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर्स हैं उसका आपने सारा जो बर्डन है वो आपने मेरे पे डालना है, मेरे पे ट्रांसफर करना है, एंड आई एम द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर रिस्क. जब आप किसी भी क्लाइंट से इस तरीके से बात करते हैं, जब आप उसको इस तरीके से मिलते हैं, ऑनेस्टी के साथ, विद एथिक्स एंड सम वैल्यूज, तो वो आप ट्रस्ट करता है. वो कहता है यार ये बंदा आके मुझे वो टिपिकल चार जुमले नहीं बोल के जा रहा कि सर आप बताएं आपकी गाड़ियां कितनी है, सर आप बताएं सर फैक्ट्री की क्या है आपकी, आपके पावर, आपके प्लांट्स की क्या, प्लांट एंड मशीनरी की क्या वैल्यू, मुझे दे, मैं आपको कोड दे देता हूँ, बस आप मुझे दे दें. दैट इज समथिंग जिसमें आप एक पर्सनल रिलेशन क्लाइंट के साथ डेवलप नहीं कर रहे. सो द मेन पार्ट इज दैट यू नीड टू काइंड ऑफ develop that personal relation with the customer. At the core, clients buy the trust first and the policy second. पहले वो आप पे ट्रस्ट करता है, पहले वो ये देखता है कि अच्छा यार दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी. उसके बाद जब आप उसके साथ एक कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहते हैं तो वो आपसे फिर पॉलिसी बाय करता है. कवरेज हर बंदा प्रोवाइड कर रहा है, जितनी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर सारे कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सारी कंपनीज, अगर आप टॉप 5 कंपनीज, 4 कंपनीज, सारी कंपनीज बहुत अच्छी क्रेडिबल हैं. दैट इज व्हाई दे आर देयर. उनके पास बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स काम कर रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ बिलियंस के बिजनेसेस कर रहे हैं और वो अपने कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं. सो कवरेज इज एवरीवेयर, बट द क्रेडिबिलिटी, यू हैव टू क्रिएट दैट क्रेडिबिलिटी फॉर योर सेल्फ, कि आप अगर एक कंपनी के साथ और एक इंडिविजुअल के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी अपनी भी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. जब आपने किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, आई सजेस्ट कभी भी आपने आपने पहले उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, आपने उससे पूछा, आपने जनरल उससे सलाम दुआ की कि उसके क्या रिस्क्स हैं, फिर आप पूछें कि अब वो किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं. और कभी भी अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही उस तरह हो, आपने किसी और कंपनी को बुरा नहीं कहना. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड मेथड. जब आप कहेंगे कि यार वो XYZ कंपनी तो अच्छी नहीं है सर, हमारी कंपनी बेस्ट है, क्योंकि वो उस कंपनी के साथ हो सकते हैं 8-10 साल से काम कर रहे हो और उनको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो. सो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि सर आई एम नॉट हेयर टू स्पॉइल योर एग्जिस्टिंग रिलेशन विद योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी. मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा चांस दे दें,
मेरे साथ भी थोड़ा सा बिजनेस करें, हमारी कंपनी को भी ट्राई करें। इंशाल्लाह आई विल बी देयर ऑल द टाइम एट द टाइम ऑफ क्लेम, और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँगा। आप बेशक अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस पोर्टफोलियो में से मुझे 100% ना दें, मुझे थोड़ा सा चंक उसके अंदर से दे दें, लेकिन आप हमारी कंपनी को ट्राई जरूर करें। तो जब आप किसी कंपनी के पास जाते हैं, उसके HR, एडमिन, फाइनेंस, जो भी उसको हैंडल कर रहा है, जब आप जाके ये बात करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके दरमियान उसमें एक ऑटोमेटिकली वो चीज़ डेवलप हो जाती है कि यार ठीक है, ये मुझे एकदम से ये नहीं कह रहा कि आप सारा बिजनेस उठाएं और मुझे फॉरवर्ड कर दें। इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसका टारगेट होगा, या ये मेरे पास आया है, ही प्रेजेंटेड इट वेल, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग जिसको आपने करना है। अच्छा, इसको करने के लिए यू हैव टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी टू द थ्रू काइंड ऑफ क्लैरिटी, ऑनेस्टी और अपनी एक्सपर्टीज। पहले आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में खुद पता होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे कस्टमर के पास जा रहे हैं जो पिछले 10-15 साल से, 5 साल से, 6-7 साल, 8 साल से इंश्योरेंसेस करवा रहा है, तो वो अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी प्रोडक्ट की और आप उसके पास जाएंगे, तो यू लुक लाइक अ फूल। बिकॉज अगर वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आपके पास आंसर ही नहीं है, तो वो मेरा नहीं ख्याल आपको सेकेंड टाइम चांस देगा कि आप उसके ऑफिस में दोबारा आए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपने जब जाना है, जिस कस्टमर के पास भी जा रहे हैं, पहले वेबसाइट खोल के गूगल करें कि वो कंपनी करती क्या है। फिर अपने किसी कॉलीग के पास, किसी अंडरराइटर के पास बैठ के वो टाइम स्पेंड करें। आपके सेल्स के जो कॉलीग्स हैं उनको कहें कि जी मैं इस कस्टमर को मिलने जा रहा हूँ, इसका ये बिजनेस है, तो मुझे बताएं क्या हमने इस तरह के बिजनेसेस के कंपटीशन कंपनीज को इंश्योर किया हुआ है। और उनकी, जिस तरह कोई भी बेवरेज की कंपनी है, पेप्सी में जा रहे हैं, तो आप ये देखें कि अच्छा क्या हमारे पास कोको कोला या गोरमे कोला या नेक्स्ट कोला, ये जस्ट जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कि क्या हमारे कोई एग्जिस्टिंग, हमारी इस तरह के कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उनके ऑपरेशंस किस तरह के हैं, उन्होंने कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है। तो जब आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन होगी और आप कस्टमर के पास जाएंगे और आप जाके उसके साथ ये बात करेंगे कि सर वी आर कवरिंग ये कंपनीज भी, और इन्होंने ये पॉलिसीज भी लेनी है, तो हो सकता है जिसके पास आप पिच करने गए हैं उसके पास कोई पॉलिसी ना हो। देन ही गेट इंटरेस्टेड कि अच्छा यार उसने क्या वाली पॉलिसी ली हुई। ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज कि आप रेट्स तो आपने नहीं बताने, लेकिन आप पॉलिसी बता सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द बेसिक उन्होंने डायरेक्टर्स एंड ऑफिस लाइबिलिटी ली हुई है, या उन्होंने बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी ली हुई है, कोई भी इस तरह की पॉलिसी ली हुई है, तो उसके अंदर क्लाइंट विल बी लाइक अच्छा द अदर कंपनी इज डूइंग द सिमिलर ऑपरेशंस लाइक माइन, तो आई शुड ऑल्सो लिसन टू हिम कि ये मुझे, हिम और हर, कि मुझे क्या बता रहा है, और मे बी वो मेरा इंटरेस्ट हो, तो फिर उसका आपके साथ एक इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप जब उसके पास आए हैं तो आप फुल नॉलेज के साथ आए हैं, आप उस फुल उसके ऊपर अपनी वर्किंग और होमवर्क कर कर आए हैं। तो आपने उसको पूरा कवरेज एक्सप्लेन करनी है, एंड उसको सारा कुछ बताना है, और आपने उसको ये शो करना दैट यू जेन्युइनली अंडरस्टैंड बोथ द प्रोडक्ट्स और उसकी प्रायोरिटी क्या है। सो जब क्लाइंट को ये फील होगा, वो अंडरस्टैंड करेगा कि यू आर नॉट प्रेशर्ड, दे स्टे, ठीक है, दे रेफर एंड दे रिलाई ऑन यू व्हेन लाइफ गोज काइंड ऑफ साइडवेज। तो ये वाली चीज आपने उसके साथ डेवलप करनी है। अच्छा, कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच, वही बात जो मैंने पहले की, असेस द क्लाइंट रिस्क बिफोर पिचिंग एनीथिंग। पहले उसका रिस्क असेस करें, उसके डेमोग्राफिक्स आप असेस करें कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। अगर उसकी गाड़ियों का फ्लीट है तो उसके नियर बाय वर्कशॉप्स कौन सी हैं, उनमें से कौन सी वर्कशॉप्स आपकी गाड़ी के पैनल के ऊपर, आपके पैनल के ऊपर है, जहाँ पे क्रेडिट के ऊपर काम हो जाता है। तो जब आप उसके पास जाएंगे और वो आपसे बात करेगा और वो कहेगा कि मैं ये XYZ वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी भेजता हूँ, तो आप कहें जी सर, आपके घर के, आपके फैक्ट्री के पास या आपके ऑफिस के पास में ये XYZ वर्कशॉप्स हैं जो कि हमारे पैनल पे हैं, और वहाँ आपको क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो आपने क्लाइंट का रिस्क असेस करना है, उसके बाद उसको कोई चीज़ पिच करनी है। आपने टर्न नीड्स इनटू टेलर्ड सॉल्यूशन, नॉट द वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज है कि
हर एक बंदे को हर एक चीज सूट नहीं करेगी। कई ऐसी चीजें होंगी जिसका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर हर एक के एम्प्लॉयज डिफरेंट हैं, हर एक के डिपेंडेंट्स डिफरेंट हैं, हर एक के डेमोग्राफिक्स और लोकेशंस डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो डिफरेंट तरीके से। तो आपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है दैट यस देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि एप्लीकेबल होती हैं हर इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमें बताएं आपकी क्या नीड है एंड वील बिकम सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर यू एंड फॉर योर बिजनेस, ताकि हम आपके अकॉर्डिंगली उसको टेलर कर सकें। जितनी पॉलिसीज आप ने इशू करवानी है या आप बनवा रहे हो तो आप उसको पहले खुद भी गो थ्रू करें। यू नो एज अ सेल्स पर्सन हमारी सिर्फ ये जॉब नहीं है कि हम गए हमने क्लाइंट को पिच किया उसने हमें बिजनेस दिया और हम साइड पर हो गए, पॉलिसी राइट करके प्रीमियम आया एंड दैट्स अबाउट अचीव हो गया। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की पॉलिसी पे क्या डिडक्टेबल्स लगे हुए हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी डिप्रिसिएशन क्या लगी हुई है, उसकी पॉलिसी क्या है। खुदा ना खास्ता कल को क्लेम आया और क्लाइंट को कोई डिडक्टेबल या डिप्रिसिएशन का ना पता हुआ, तो क्लेम के टाइम पे वो आपको ही कॉल करेगा और उस टाइम पे यू कैन नॉट से एंड यू कैन नॉट बैक आउट कि सर आपको मैंने पॉलिसी दे दी थी आपने पढ़ी नहीं, ये तो एक स्टैंडर्ड डिडक्टेबल होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड द बेस्ट वे इज कि अपने क्लाइंट को पहले हर बात आपने खुद बतानी है कि सर दिस इज द कोटेशन, ये मैं आपको प्रीमियम कोट कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर एक्सेस लगी हुई है, ये इस पे 50,000 का डिडक्टेबल लगा हुआ है, या ईच एंड एवरी लॉस के ऊपर एक सर्टेन 10% की अमाउंट लगी हुई है, ये इस तरीके से पे होगी कि आपका क्लेम आता है लैपटॉप का या मोबाइल का या किसी और चीज का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की पॉलिसी का, तो फर्स्ट इतने ₹1,000 यू हैव टू पे, the remaining over and above amount we have to pay। ट्रैवल इंश्योरेंस करा रहे हैं, कोई आपसे बंदा पूछता है कि यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुझे बताओ इसके बारे में, तो आपने उसको ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप मोस्टली जो पॉलिसीज होती हैं बिकॉज ऑफ आर सर्टन हमारे जो रेगुलेशंस हैं हम पे नहीं करते आउट ऑफ कंट्री, तो ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि सर यू हैव टू पे द प्राइस द क्लेम की जो अमाउंट है, जो बिल है आपका मेडिकल का ओवर देयर आउट ऑफ पाकिस्तान, और जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको सारी रिसीट्स लेकर आनी है और सारी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर आनी है और आप यहाँ पे हमें सबमिट करवाएंगे। फर्स्ट आपकी डिडक्टेबल अमाउंट डिलीट वो उसमें से डिडक्ट होगी और उसके बाद काइंड ऑफ वी आर गोइंग टू पे यू द क्लेम। तो आपने खुद भी पॉलिसी को गो थ्रू करना है। Then comes the lead generation. Lead generation के अंदर obviously you can use the LinkedIn outreach, HR managers, finance head, business owners, ये normally वहीं पे होते हैं जो इंश्योरेंस को डिसाइड करते हैं। मोस्टली इनमें से HR एडमिन और फाइनेंस ही कर रहा होता है, तो आप उन लोगों को कांटेक्ट करें। आस्क पीपल अराउंड यू, आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनसे आप रेफरल मांगे कि सर मुझे आपकी तरफ से रेफरेंस चाहिए, मैं किसी को आपकी तरफ से कॉल कर लूं। एंड उस क्लाइंट को आप कॉल करें, उनको बताएं कि सर मुझे इन साहब ने आपका नंबर दिया है एंड आई एम कॉलिंग फॉर इंश्योरेंस। अच्छा लेट्स सपोज वो ये कहते हैं कि हमने करवाई दी इंश्योरेंस, तो आप उन्हें बड़ा पोलाइटली उन्हें कहें कि जी ठीक है सर, दैट मुझे आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए, वेन एवर यू आर अवेलेबल, मैं सिर्फ आपसे आके सलाम दुआ के लिए हेलो हाय के लिए आना चाहता हूँ, तो वेन एवर यू हैव टाइम। उसके बाद वो आपको जवाब देते हैं, टाइम देते हैं, दैट्स वन थिंग। बट आफ्टर अ वीक, आफ्टर 2-3 days 4 days आपने एक नॉर्मल जस्ट पोलाइट सा हेलो का मैसेज ड्रॉप करें और क्या होप यू आर डूइंग वेल एज डिस्कस्ड few days earlier, if you have any time or you're looking for any kind of thing, please let me know, I just want to drop by। तो आपने फौरन से ही उसको इंश्योरेंस के लिए प्रेशराइज या पिच नहीं करना। नॉर्मली लोग अवॉइड कर रहे होते हैं लोगों को कि भाई ना आए जिनके साथ उनके ऑलरेडी अरेंजमेंट्स चल रहे होते हैं, दे वांट टू कंटिन्यू विद देम, या नॉर्मली वो नहीं आप लोगों को इस तरह केटर करते। सो आपने एक बहुत छोटा सा हेलो हाय का मैसेज ड्रॉप करना है।
रेफरल्स, अब आपके ऑब्वियसली किसी ने आपको रेफरल प्रोवाइड किया है, उसको रिवॉर्ड अगर आप कर सकते हैं उसको रिवॉर्ड कर दें. जस्ट टेक हिम आउट फॉर कॉफी, इनवाइट हिम फॉर लंच, उसके लिए कोई केक कोई चीज लेके चले जाएंगे, सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे वो रेफर किया था बंदा, उसके थ्रू मेरा बिजनेस हो गया या मुझे उसने बिजनेस दे दिया. आई जस्ट केम टू से this is kind of a token of thank you. So appreciate the people जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं आपके करियर में ग्रो होने के लिए. अगर आपको कोई रेफर कर रहा है, उसको एक कर्टसी का थैंक यू का मैसेज करें, उसको इन्फॉर्म्ड रखें ताकि उसको ये फील ना हो कि यार इसने मुझसे एक फेवर तो ले ली लेकिन ही इज नॉट काइंड ऑफ थैंकफुल टू मी. मेहनत आपकी होगी सारी, आपने ही सारी लीड को प्रोसेस किया होगा, क्लाइंट से बात की होगी, बिजनेस मटेरियलाइज किया होगा, लेकिन वो लीड आपको किसी ने प्रोवाइड किया है, तो उस बंदे को जरूर थैंक यू. पार्टनर विद बैंक्स, एमएफआईज, पेरोल कंपनीज, ये जितनी आपके बैंक्स हैं इनके साथ आप, अगर आपकी कोई जान पहचान है तो उनसे मिलें, उनसे पूछें कि उनके पास लोग इंडिविजुअल आते हैं गाड़ियों की लीज के लिए या कॉर्पोरेट्स आते हैं, तो अगर उनकी कोई इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट हो तो हाउ कैन यू प्रोवाइड हेल्प इन दैट. सेल्स फनल, ऑब्वियसली मेंटेन योर सेल्स फनल. आपके पास वीक में आपको पता होना चाहिए क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं. ये लीड आई आपके पास, एक नीड असेसमेंट आपने बनाई, आपने उसका एक प्रपोजल बनाया. अच्छा, प्रपोजल से क्लोजर तक, या उसमें अगर लेट्स सपोज इवन आपका वो क्लोज नहीं भी होता, एवरीथिंग, एवरी पीस ऑफ पेपर, एवरी इंफॉर्मेशन शुड गो थ्रू यू. आपने कोई ईमेल की है किसी अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट को, आप जाएं उनके पास जाके बैठे, उनसे उनके आपसे 4 सवाल होंगे कि अच्छा यार ये बताओ ये कहाँ पे जगह है, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे, ये प्रीवियसली कहाँ से इंश्योर्ड है, इसके प्रीवियस लॉस रेशोज क्या हैं, इनके किधर जाते हैं ये क्लेम करवाने के लिए, इनकी क्या हिस्ट्री है, इनके मालिकान कौन है. तो यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ताकि जब आप अपने अंडरराइटर को भी प्रेजेंट कर रहे हो देन ही ऑल्सो नोज कि यार आप अपना होमवर्क कर आए हैं. उसके बाद आपने कोटेशन बनवानी है, कोटेशन को अंडरस्टैंड करना है. अगर आपने उसको गो थ्रू नहीं किया होगा, आप जाके सिर्फ प्लीज फाइंड अटैच करके ईमेल कर देंगे किसी कस्टमर को और वो आपसे सवाल करेगा और आपके पास उसका आंसर नहीं होगा, तो you'll again become a fool in front of him. So it's better you go through the quotation yourself, उसको पढ़ें, उसके डिडक्टेबल्स को पढ़ें, उसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, कोई वारंटीज लगी हुई है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो उन वारंटीज को अंडरस्टैंड करें. फिर आप क्लाइंट को ईमेल पे अगर भिजवा रहे हैं उसको ईमेल पे भिजवाएं, उसको साथ में एक व्हाट्सएप ड्रॉप करें कि सर आई हैव काइंड ऑफ ईमेल्ड यू द कोटेशन, प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द बेस्ट टाइम come and meet you so that we can discuss. ठीक है, उसके बाद वो ऑब्वियसली आपको टाइम देगा या जैसे भी वो आपको करेगा. 2-3 दिन गुजर जाए, आप फॉलो अप करें. द ओनली थिंग आई थिंक मेरे करियर में मुझे अगर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लगता है कि मैं आज इस थोड़ा सा सेल्स के अंदर कर सकती हूँ, दैट इज द फॉलो अप पार्ट. आई डोंट लीव, आई started my career with this follow up and coordination thing, and till date I don't let go this follow up, because follow up is the only thing. अगर आप ये सोचेंगे कि कर देगा तो आपको ओके नहीं करेगा जब तक आप उसको कंटिन्यूस फॉलो अप नहीं करेंगे. आपने एक सर्टेन टाइमिंग में रहते हुए you have to be very active in following up in any matter, be it with the client जिसको आपने कोटेशन दी है, be it with your claims department जिसके पास अगर आपके क्लाइंट का क्लेम आया हुआ है तो आपने जाके क्लेम्स वाले से भी फॉलो अप करना है. यार मेरे फला फला मिस्टर XYZ का क्लेम आया हुआ है, इसकी क्या अपडेट है, सो दैट जब कस्टमर पूछे तो ऐसे ना हो कि आपके पास नॉलेज, वो क्या है तो ही हैज नो नॉलेज अबाउट माय क्लेम. तो आपको उस क्लाइंट का, चाहे वो कॉर्पोरेट है चाहे वो इंडिविजुअल क्लाइंट है, ईच कस्टमर इज इक्वली रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टेबल, और आपने उसको वो रिस्पेक्ट देनी है. उसने आपको बिजनेस दिया है तो आपने उसके बिजनेस का कंटिन्यूस फॉलो अप भी रखना है विद योर अंडरराइटिंग क्लेम्स and whoever is उसके साथ attached है. Treat sales like a process and not a luck break. Yes, it's a continuous process जैसे मैंने आपको बताया है.
and it keeps on growing. Every stage require different skills. Like I said, that every customer has a different need, they have a different business, so they require a different skill and a strategy. देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. अब लेट्स सपोज आपने किसी क्लाइंट के ऊपर बहुत मेहनत की है, उसका रिन्यूअल था, आपका टारगेट था, एंड यू हैव वर्कड रियली रियली हार्ड. ठीक है, और आपने, आई अंडरस्टैंड कि बहुत डीमोटिवेटिंग होता है जब आप किसी कस्टमर को एक कोटेशन सबमिट करवाते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये बिजनेस मेरा मैच्योर हो जाएगा. हो सकता है वो आपका जानने वाला हो सकता है वो आपका जानने वाला ना हो सकता है वो आपका पुराना कस्टमर हो और जो आपके साथ 8-10 साल से चलता हुआ आ रहा हो, लेकिन इस साल किसी भी वजह से वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करता. आपने उसके पेशेंटली एंड वेरी हम्बली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके कंसर्न्स क्या हैं. बिफोर उसको रिस्पॉन्ड करने के उससे पूछें, सर इज देयर एनीथिंग व्हिच कैन बी डन, जो मैं इसमें फर्दर आपकी हेल्प कर सकता हूँ. और वो आपको बताएगा रेट्स का मसला है, क्लेम का मसला है, नॉर्मली रेट्स का प्रॉब्लम होता है. तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने अपने अंडर राइटिंग से चेक करना है कि आपके पास क्या फर्दर रेट रिडक्शन का मार्जिन है. एंड देन आपने क्लाइंट को भी उसी तरीके से पोलाइटली समझाना है कि सर दिस वाज माय मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जिस तक मैं जा सकता था, एंड आई एम सॉरी, इसको मैं फर्दर नहीं कर सकता. और इसको आपने बड़ा हम्बली हैंडल करना है ताकि नेक्स्ट ईयर आप उसको दोबारा पिच कर सके. Use stories and real cases to build credibility. जैसे I said it earlier that आपने उसको रेफरेंस दें उसी तरह की इंडस्ट्री का. अगर इंडस्ट्री के कोई 4 बड़े क्लेम आए हैं तो आपको वो क्लेम पता होने चाहिए कि मेरी इंडस्ट्री में इस टाइम पे यहाँ पे फायर हुई थी, यहाँ हुई थी. तब जब आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे क्लाइंट के साथ तो आप उसे बताएंगे कि सर ये करवाना बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट. बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई क्लेम आ गया तो आपको पता है उस इंडस्ट्री में ये क्लेम आया था, उसके अंदर इतने का लॉस हो गया, तो दिस नीड्स टू बी कवर्ड ऑल द टाइम. सो यूज स्टोरीज एंड रियल केसेस. आप कोई फॉरेन की स्टडीज पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान की स्टडीज पढ़ सकते हैं ऑन इंश्योरेंस क्लेम्स, और आप उनको रेलेवेंट रेफरेंसेस बताएं. नेवर पुश, गाइड द क्लाइंट थ्रू क्लैरिटी. आपने उसको पुश नहीं करना किसी चीज के लिए, हमेशा उसको गाइड करना है. The power of follow up, like I said, 80% of sales come after 3+ follow ups. जब तक आप क्लाइंट के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल डेवलप होता रहता है. सेल्स पर्सनल मस्ट लर्न परसिस्टेंस विदाउट बीइंग अनोइंग. अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंश्योरेंस के बारे में ना लोगों ने हमारे नंबर भी ब्लॉक में डाले हुए होते हैं बिकॉज दे थिंक के यार ये इंश्योरेंस वाले की कॉल आ गई है, यार ये इंश्योरेंस वाला बड़ा तंग करता है, ये पीछे पड़ जाता है. आपने उसके लिए हर वक्त अवेलेबल होना है, अपने कस्टमर के लिए, अपने पोटेंशियल कस्टमर के लिए. यू हैव टू बी ऑलवेज अवेलेबल. वो आपको शाम को भी मैसेज कर सकता है, वो आपको रात को भी कर सकता है, वो उसको संडे को भी कर सकता है, वो ईद वाले दिन भी अगर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वो कर सकता है. लेकिन आपने एक सर्टन टाइम, जैसे 9 to 5 का टाइम है, तो उसमें भी आप ये देखेंगे 9 o'clock हर एक के अपने बिजनेसेस आवर्स चल रहे होते हैं. उस टाइम पे उसको कॉल करेंगे तो वो अनॉय होगा कि यार ये मेरा बिजनेस आवर चल रहा है, क्या मुझे 9 बजे इंश्योरेंस वाला कॉल कर रहा है. सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग कि अच्छा यार मैं उसको 11, 11:30, 12 बजे जब वो थोड़ा सा एक रिलैक्स मोड में होगा, वो अपने बिजनेसेस में भी अपने टू डू लिस्ट जो है उसकी चेकलिस्ट कंप्लीट कर चुका होगा, तो मैं अब इसको टच करता हूँ. फिर इसी तरह लंच ब्रेक्स में आपने लोगों को कॉल्स नहीं करनी, बिकॉज अगर आपकी कंपनी में 1 to 2 लंच ब्रेक हो रही है और नमाज ब्रेक हो रही है तो दूसरी कंपनी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेक चल रही होगी. सो कॉल आफ्टर लाइक 2:30 से 4:30 तक का टाइम रखें जिसमें आप कस्टमर को कॉल करें. एंड डू नॉट सेंड सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज और वो वाले मैसेजेस. दोज आर नॉट नेसेसरी, वो क्लाइंट पसंद भी नहीं करते. सो इट्स ऑलवेज कि आप जस्ट ड्रॉप अ हेलो सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, जस्ट वांटेड टू कम एंड मीट यू. आपके पास जब टाइम हो प्लीज मुझे बता दें, व्हेन कैन आई कॉल यू. ऑलवेज मैसेज द कस्टमर कि सर अस्सलाम वालेकुम, आर यू अवेलेबल फॉर अ कॉल. एंड इफ दैट पर्सन इज अवेलेबल फॉर अ कॉल तो फिर आप उन्हें कॉल करें.
और उनसे बात करें। use CRM reminders, WhatsApp and periodic value added messages, वो आप उनको टाइम टू टाइम कोई ना कोई। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आपकी कंपनी में कोई रिस्क रिलेटेड ईमेल्स आती हैं जिसमें वो बताते हैं कि कस्टमर को आप रिस्क के बारे में बताएं, या कोई केस स्टडी आ जाती है आपकी कंपनी में सर्कुलेट होती है, तो वो आप अपने सारे कस्टमर्स को भेजें, सो दैट दे ऑल्सो नो कि अच्छा यार ये रिस्क है। जैसे आजकल हमारे यहाँ ये फ्लड्स का बहुत हुआ था, तो सोलर पैनल्स और होम इंश्योरेंसेस लोगों ने बहुत करवाई थी बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। तो उसके ऊपर अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और आपको लगता है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, तो उनको भेजें, बिकॉज दिस इज द टाइम जब उनकी वो नीड है। तो आप उनको बताएं कि सर वी आर ऑफरिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन विच यू कैन इंश्योर एंड कवर योर हाउस एंड सोलर पैनल्स, तो आप लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो नीड बेसिस के ऊपर भी आप उनको मैसेजेस कर सकते हैं। Personal branding for sales success. Become the insurance person in your network. You should be the person जिसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जो अपने जो कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बात कर सकता हो, एंड ही हैज गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। पोस्ट एजुकेशनल कंटेंट ऑन लिंक्डइन एंड होस्ट स्मॉल वेबिनार्स एंड क्यूए सेशंस। उसके बाद KPIs एवरी स्टार्टर शुड ट्रैक, लीड कॉन्वर्सेशन, नंबर ऑफ मीटिंग्स बुक, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक हफ्ते के अंदर कितनी मीटिंग्स हैं। फॉलो अप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और प्रपोजल टू क्लोजर का रेशो भी आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेरे KPIs हैं, इतने मैंने प्रपोजल सबमिट करवाए हैं, लेट इट बी हेल्थ इंश्योरेंस मोटर। और फिर उसका एक एनालिसिस करें और आप देखें कि यार मसला क्या आ रहा है। इज इट द रेट इज द प्रॉब्लम, इज योर फॉलो अप इज द प्रॉब्लम, कवरेज इज द प्रॉब्लम, या कंपैटिटर कोई ऐसी चीज ऑफर कर रहा है जो आप नहीं ऑफर कर रहे। तो आपने वो वाली चीज को अगले साल का जब रिन्यूअल आएगा उसी पर्टिकुलर कस्टमर का, उसके लिए आपने पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। Last slide. An effective insurance sales strategy focus on trust building, education, relationship management, and digital transformation. Companies that combine technology with strong human relationship will dominate future insurance market. Thank you from my side, and now you guys can ask any questions if you have. Thank you very much, Miss Madiha. It is very fruitful session. अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, वन बाय वन हम क्वेश्चन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है, अब ये देखें ना, जैसे आपने सेल के ऊपर सारा प्रोसेस बताया, तो इसमें अब मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, वी आर डीलिंग विद द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं ना, ये एक डिफरेंट है। अब जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया मल्टीनेशनल है, जैसे AIG है, इनके बिजनेसेस हैं, ज़्यूरख है, इनके बिजनेस हैं। तो हम यहाँ पे लोकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका फ्रंटिंग बिजनेस राइट करते हैं। तो इस सिनेरियो में व्हाट वी कैन डू? देखिए, अगर तो आप ब्रोकर्स हैं, तो आपने दूसरी कंपनीज के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है, उनकी सीनियर मैनेजमेंट के साथ या उनकी मिडिल मैनेजमेंट जो उन बिजनेसेस को कर रही है। एंड देन इफ यू वांट के उस बिजनेस का सर्टेन शेयर को इंश्योरेंस या सर्टेन जो शेयर है वो आपको भी दिया जाए, तो देन यू हैव टू काइंड ऑफ टॉक टू द मैनेजमेंट, अपनी मैनेजमेंट से बात करें। आपका अगर कोई कनेक्शन है तो उनको उनके साथ लिंक करें और उन्हें कहें कि यार हमें आपने इसके अंदर को इंश्योरेंस देनी है, लेट्स सपोज, या कोई बिजनेस का एक सर्टेन परसेंटेज है जो आप हमें भी ऑफर करें। और बेसिकली जब आप दूसरी कंपनीज के साथ, ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ब्रोकर्स तो ये ऑब्वियसली दे आर कलेक्टिंग कोटेशंस फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज। तो आप उसके अंदर उनको ऑफर करें कि ठीक है हम आपको इस बिजनेस के अंदर को इंश्योरेंस देते हैं, तो रेसिप्रोकल में आप हमें क्या देंगे। सो आई थिंक यू शुड बी लाइक, अब तो जिस तरह सिचुएशन है in Pakistan, even the brokers are growing mashallah from last many years, and they have developed good businesses with customers also. और कस्टमर का यहाँ पे क्या उसको ईज मिलती है कि उसको एक ही ब्रोकर से 2-3 डिफरेंट कोटेशंस मिल जाती हैं, और वो उनको ये लगता है कि ब्रोकर हमारे बिहाफ पे अच्छे रेट्स नेगोशिएट कर रहे हैं। बट देन इफ यू आर डीलिंग विद ब्रोकर डायरेक्टली, तो आप उन्हें कहेंगे वी विल हेल्प मी आउट इन दिस स्पेस, हम आपको इस बिजनेस के अंदर
को इंश्योरेंस में शेयर देते हैं, आप हमें इस बिजनेस के अंदर हेल्प आउट करें टू राइट द बिजनेस। जी थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम। Yeah, this is Asim Rizvi from Adam ji. Just wanted to highlight one question. Thank you very much. पहले तो बहुत ब्रीफ सेशन आप लोगों की तरफ से हुआ, लेकिन मेरा एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं इस पर रेज करना चाह रहा था कि जी, इसमें please. मार्केट, जैसे आपने बताया, डिजिटलाइज है, रिलेशनशिप मार्केट है, आपने टूल्स बहुत अच्छे बताए हैं कि इन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं एज ए यूएसपी। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं ना, तो अब जो जिस तरह हम पहले कपल ऑफ इयर्स वाली मार्केट थी जो कि कोल्ड कॉलिंग मार्केट थी, जिसपे आप कोल्ड कॉलिंग कर लेते थे, चीजें कर लेते थे, लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट जो है वो पर्सनलाइज हो गई है। लोग पर्सनल रेफरेंस को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं रादर कि कोई एक एज अ स्ट्रेंजर अगर कोई चला जाता है किसी रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो वो उसको, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप तो मुझे जी, इस पे दैट थोड़ा सा इज जरा ट्रू, correct करें। दैट इज ट्रू। अभी भी देखिए, पहले भी यही था कि पहले भी रेफरेंस बेस बहुत ज्यादा वैल्यू करती थी, क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे ही मिलने चले जाएंगे ना, तो वो आपको ऐसे ही एंटर भी नहीं होने देंगे। आजकल जिस तरह के हालात हैं, कोई उस तरह नहीं होता। बट जो बड़े बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहां पे तो डेफिनेटली यू रिक्वायर रेफरेंस। वहां पे तो आप किसी रेफरेंस से जाएंगे, तो वो आपको केटर करेंगे, मे बी अ स्मॉल परसेंटेज, फुल बिजनेस नहीं देंगे, लाइक आई सेड, वो आपको कुछ शेयर दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। बट आजकल जैसा सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, तो आप ये देखें कि आईटी के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे माशाल्लाह आईटी इज काइंड ऑफ वर्किंग रियली वेल इन द इंडस्ट्री दीज डेज। और उनको, छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस को, अपने एम्प्लॉइज को जैसे हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, ठीक है, बिकॉज वो बाहर की मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता है जी, उनकी एक नीड है, दैट उनका भी क्राइटेरिया होता है जब आप बाहर के वेंडर से काम कर रहे होते हैं कि आपने अपने एम्प्लॉइज को हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है। तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दोज काइंड ऑफ बिजनेसेस जहां पे आपको इतना रेफरेंस, क्योंकि वो स्टार्टअप्स होते हैं, तो उसके अंदर आप एंटर हो, वहां पे आपकी कोई जान पहचान हो, 5 एम्प्लॉइज हैं, 10 एम्प्लॉइज हैं, 6 एम्प्लॉइज हैं, वो कोई अमेरिकन बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप उनकी हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट करें। जब वहां से आप ग्रो होना शुरू होंगे, उन्हीं की गाड़ियां इंश्योर करें, उन्हें कहें अच्छा यार आप बताओ आपके जैसे और कौन से सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, ठीक है, फिर वो आप उनके पास जब जाएंगे, तो आप अपने पहले वाले का रेफरेंस दे सकते हैं कि वो XYZ कंपनी जो है, वो भी आप ही की तरह का सॉफ्टवेयर हाउस है, एंड वी आर इंश्योरिंग देम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, तो लेट अस नो दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो अभी भी कुछ कंपनीज हैं, कुछ जगह हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज तो मैं नहीं कहूंगी, बट इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर आप अभी भी विदाउट रेफरल जा सकते हैं, बट मेजॉरिटी यस, रेफरेंस जो है आपको रिक्वायर होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ब्रेक थ्रू करने के लिए। आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। आई थिंक काफी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था, सबको मेरे ख्याल सब कुछ समझ आ गया है, इसीलिए किसी का क्वेश्चन नहीं, you guys can always contact me, मैं LinkedIn पे मेरा प्रोफाइल है, so you guys can always contact me for any kind of help or any kind of guidance. And here I would also like to thank EIPCP and Rana Saab for giving us the platform and the opportunity, जहाँ पे हम आते हैं, हम आके हर वीक अपनी डिस्कशंस करते हैं, और जो मेन कोर थिंग्स हैं ऑफ इंश्योरेंस, उसके ऊपर हमारी बहुत जबरदस्त लर्निंग होती है। सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू राना साहब फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ अस। जी वेलकम। आई थिंक इसको हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस मदीहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच। Till then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।